Welcome to the next part of Maths chapter Continuity and Differentiability. Today we are going to complete higher order derivatives. This is easy topic. Now you've come across derivations of different kinds, up to now. And this is comparatively very simple topic because what you do is you differentiate a function not once but twice. Okay, so that is also known as double differentiation, double derivative, higher order derivatives. Okay, so if the derivative of a function y is known as dy by dx, if you again differentiate with respect to x, it is known as d square y upon dx square. This is the second order derivative. Second order derivative of dy by dx. Okay, so we are concerned with this kind of higher order derivative, derivative of a derivative of a function. Okay, there is a third order derivative also, and there can be nth order of derivative also. You can go on deriving a function one after another. Okay, we'll see with examples because there is not much to understand in the theoretical part. It's the same as derivative. So let's find the second derivative of sine inverse of x. Okay, so the second derivative of sine inverse of x. First, y is equal to sine inverse of x. This is our function. So dy by dx is equal to d by dx of sine inverse of x, which is not a big deal, which is 1 upon under root of 1 minus x square. Okay, you can write it as 1 minus x square the whole raised to minus 1 by 2, just for simplification. Now, what is d square y by dx square? It is d by dx of dy by dx, and we know that what is dy by dx. Dy by dx is this. So d by dx of 1 minus x square the whole raised to minus 1 by 2. Okay, so we'll apply chain rule. In chain rule we have to treat this stuff inside the bracket as an untouchable value. So first we'll get minus 1 by 2 multiplied by uh, so we'll subtract 1 from this power over here and it will become minus 3 by 2. So we have 1 minus x square the whole raised to 3 by 2. Sorry, minus 3 by 2. Okay, then we have d by dx of 1 minus x square, which is the second part of the chain rule. So we have minus of 1 minus x square raised to minus 3 by 2 the whole upon 2 multiplied by d by dx of, so we'll put a bracket here, multiplied by d by dx of 1, which is 0, minus d by dx of x square, which is 2x. Okay, so on simplification you get minus 2x will be multiplied in the numerator over here. So minus 2x multiplied by minus of 1 minus x square the whole raised to minus 3 by 2 the whole upon 2. This 2 cuts with this 2. Uh, so if you observe over here, we have minus 3 by 2. Okay, what I can do with it is I can treat it like this. See, this minus minus will become plus. So x upon 1 minus x square, this will become plus 3 by 2. Plus 3 by 2. Okay. Now 3 by 2 is 1 plus 1 by 2. Okay. So you can write this as x upon 1 minus x square raised to 1
into 1 minus x square raised to 1 by 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. Correct? So you get x upon 1 minus x square. Anything raised to 1 by 2 is that under root of that thing. X upon 1 minus x square under root of 1 minus x square. But there is one condition, that x cannot be equal to plus or minus 1. Because if x becomes plus or minus 1, then the denominator becomes 0 and the whole uh, function becomes indeterminable. Okay, so you cannot differentiate it, or it cannot be differentiated at the first place. So that's why the denominator cannot be 0. Okay, so that's a simple question. Let's go to the next question. Questions are comparatively simple because you've done almost all the types of problems in differentiation now. So you should have become a champ of differentiation. Anyways, next question is y is equal to 500 e raised to 7x plus 600 multiplied by e raised to minus 7x. Show that show that d square y by dx square is equal to 49y. So basically we have to differentiate this function twice. So let's differentiate it once. So we get dy by dx is equal to d by dx of 500 e raised to 7x plus d by dx of 600 e raised to minus 7x. Okay, so this will be, okay, I'll put a bracket here so that we are not confused. Okay, so this will be 500, which will come out common, multiplied by differentiation of e raised to 7x. Now differentiation of e raised to x is e raised to x, but we don't have e raised to x, we have e raised to 7x. So first will have e raised to 7x by chain rule, and then we'll find differentiation of this 7x, which is nothing but 7. Okay, so 500 multiplied by e raised to 7x multiplied by 7. Okay, similarly over here we are going to get 600 multiplied by e raised to minus 7x multiplied by minus 7. Correct? So this 7 will come out of the it will come out common. So we'll have e raised to 7x multiplied by 500 plus, sorry, minus, because just 7 has been taken out, minus sign remains as it is. So minus e raised to minus 7x into 600. Okay, so if you want, you can simplify this further. You can write it as 600 upon e raised to 7x, or maybe you can take out 100 common. Let's take out 100 common. I think that it should have been taken out. Why it's not taken out? So we have 700 bracket 5 e raised to 7x minus 6 upon e raised to 7x. That is what we are getting. So if you don't put this e raised to 7x in denominator, that's also is fine, because you again have to differentiate it. Okay, so anyways, so we have got this. Now d square y by dx square, that is d by dx of 700 bracket 5 multiplied by e raised to 7x minus 6 upon e raised to 7x. Okay, so 700 will come out common, and d by dx, I will distribute it, d by dx
with 5 times 7 e raised to 7x minus d by dx of 6 raised to e times e raised to 7x. The bracket closes. Okay, so 700 will remain outside. Here you are going to get uh, 5 will come out common. Then d by dx of e raised to 7x is e raised to 7x times 7, right? Here you are going to get minus 6 will come out common. D by dx of 1 upon 7 e raised to 7x, that is d by dx of e raised to minus 7x. See, I told you that if you didn't take it in denominator, that's also is fine. So you are going to get e raised to 7x minus 7. Okay, so 700 times 35 times e raised to 7x minus, oh, I'm sorry, minus plus 42 times e raised to minus 7x. Yeah, this will remain minus 7x. Okay, now so we have got 700 bracket 5 e raised to 7x into 7, that is 35. See, again I think 7 can be taken out common, right? Again I think 7 can be taken out common. So if you see closely, what do we have here? 700 times 7, because 7 is common in both of them, and this will become 5 e raised to 7x plus uh, if 7 is taken out common, we get 6 e raised to minus 7x. And we already know what is that. Now, if you see this, if you see the value, if you multiply that 100 inside, this will become 500 plus 600. Don't get confused. Actually, I've taken out 100 outside. But if you see in your original question over here, you have 500 and 600. Here you have 5 and 6. So that 100 which you had taken outside, if you multiply it back inside, this will become y. This will become y, right? So can I write it as d square y by dx square is equal to 4900. I'm sorry, 49. Just 49. I'm multiplying 100 inside. Bracket 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x. That is 49y, because this bracket is nothing but y. So d square y by dx square is 49y. Okay. So see, there are exponential differentiation also involved over here. They're all variety kind of questions in here. This is the, let me remind you, this is the last part of your continuity and differentiability or differentiation or derivatives. Then we are going to AOD, applications of derivatives. Okay. So next we have x is equal to a cos t plus t sin t, and y is equal to a bracket sin t minus t cos t, where t is between 0 and pi by 2. We have to find d square x by dt square and d square y by dt square. Okay, so we know x as a cos t plus t sin t. Therefore, dx by dt is equal to d by dt of a cos t plus t sin t. Correct? A will come out common, and we have d by dt of cos t, which is minus sin t, and d by dt of t sin t. So we have to apply
product rule. So there is a plus sign here, and then I'm going to put a bracket because see, a is outside, there is no doubt about it. Then d by dt of cos t plus d by dt of sin t. D by dt of cos t is minus sin t, d by dt of t sin t. So I'm going to apply product rule over here. So that is t into d by dt of sin t, that is t into cos t, t cos t, plus uh, sin t into d by dt of t, that is sin t. When I open the bracket, okay, a was outside, okay, a was outside, so I can put a big bracket here. When I open the bracket, I have minus sin t plus t cos t plus sin t. Minus sin t plus sin t gets cancelled, and we get at cos t, at cos t as dx by dt. Okay, now we have to find d square x by dt square, second order derivative. D square x by dt square is nothing but d by dx of uh, d by dx of at cos t, that is dx by dt. Okay, a will be taken out common, so we have d by dx of d d by dt of, I'm sorry, have I been writing d by dx? No, it is okay, this was correct. So this is d square t, d square x by dt square, and this is d by dt. Okay, so we have over here also d by dt. So here d by dt of t cos t, d by dt of t cos t is uh, let's write in the second line, a multiplied by d by dt of cos t into t, that is d by dt of cos t is minus sin t into t, or minus t sin t, plus d by dt of t into cos t, that is d by dt of t into cos t is cos t. Okay, so you can write it as a bracket cos t minus t sin t, cos t minus t sin t, a bracket cos t minus t sin t. Okay, let's do the second one. Y is sin t minus t cos t. Sin t minus t cos t. So dy by dt is equal to d by dt of sin t minus t. Okay, there was an a also. A bracket sin t minus t cos t. A bracket sin t minus t cos t. So a comes out common. Okay, sin t minus t cos t remain over here. So a bracket d by dt of sin t is cos t minus bracket d by dt of t cos t is d by dt of cos t into t, that is t multiplied by minus sin t plus d by dt of t multiplied by cos t, that is cos t. So this will become a bracket cos t minus okay, so this is t into minus sin t, that is minus t sin t, which will become plus t sin t minus cos t. Minus cos t plus cos t gets cut, so we have a t sin t, we have a t sin t. Great, so we found the value of dy by dt. Now what is d square y by dt square? It is d by dt of d square y by dt square d by dt of a t sin t. A comes out common, and we have d by dt of t sin t, d by dt of t sin t. Okay, so how do we simplify this?
सो a multiplied by d by dt of t sin t. D by dt of t sin t is d by dt of sin t multiplied by t. D by dt of sin t is cos t multiplied by t. So t cos t plus d by dt of t multiplied by sin t, that is sin t. So a multiplied by t cos t plus sin t, that is d square y by dt square. एक्चुअली ये बोल बोल के पढ़ाने में बहुत टाइम जाता है. अगर ये सॉल्व करना ही है, मुझे सिर्फ सॉल्व करना है, तो इतना टाइम नहीं जाएगा. सो ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट या सम पीपल थिंक कि सर कितने स्लो है. हाँ स्लो तो हूँ, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ सम, मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ. नहीं तो क्या मतलब है. ओके, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स. सी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, चेन रूल. ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट. तो मैं फिर से क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा ही है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस टैन एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0. हो जाएगा प्रूव. सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ठीक है, तो पहले तो अंदर के स्टफ को अनटचेबल, बिल्कुल टच नहीं करना है. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x multiplied by d by dx of sin x, that is cos x. ठीक है, तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा. एक मिनट क्या गड़बड़ किया है मैंने, देखो ये फर्स्ट वाले में d बाई, इसको अंदर वाले को टच नहीं करना है, तो ये साइन x की तरह हम लोग अगर इसको करेंगे तो हमको क्या मिलेगा. d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x, तो cos ऑफ साइन x मिलेगा आंसर. यार क्या कर रहा है, cos of sin x multiplied by d by dx of sin x which is cos x. cos of sin x into cos x, इसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दो. ठीक है, अब हम इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे. डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos of sin x multiplied by cos x. प्रोडक्ट रूल लगाओ पहले. तो cos of sin x multiplied by d by dx of cos x plus cos x multiplied by d by dx of cos x multiplied by d by dx of cos of sin x. d by dx of cos x is minus sin x. d cos x multiplied by d by dx of cos of sin x. अभी यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा. सो d by dx of cos of sin x, पहले तो ये sin x को अनटचेबल ट्रीट करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब है कि d by dx of cos x करना पड़ेगा विच इज माइनस साइन x. ठीक है, तो cos x मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस ऑफ साइन ऑफ साइन x, है ना, वो x की जगह जो भी है वो फंक्शन एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ साइन x विच इज cos x. ठीक है, सो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काफी बड़ा इक्वेशन है. ठीक है, तो यहां पे आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन एक्स. अच्छा, यहां भी ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी, माइनस ऑफ ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये cos x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा cos स्क्वेयर एक्स. ठीक है, माइनस cos स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ साइन एक्स. ठीक है, कुछ भी कॉमन यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन.
सो दिस इज डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब सिर्फ हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इसमें। एक मिनट मुझे चेक करने दो। माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ साइन एक्स, परफेक्ट है। ठीक है, अभी सिर्फ वैल्यूज डालनी है अपने को। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस tan x। tan x क्या है? tan x इज sin x अपॉन cos x। सीधा मैं लिख देता हूं बिकॉज tan x का आगे कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ भी करना है तो sin x अपॉन cos x करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx। ठीक है, जो dy बाई dx इज cos ऑफ sin x इंटू cos x, cos ऑफ sin x इंटू cos x, जो cos x कैंसिल होने वाला है। ठीक है, प्लस y cos स्क्वेयर x। अच्छा, y क्या है? y है तुम्हारा साइन ऑफ साइन एक्स, तो y की जगह साइन ऑफ साइन एक्स डाल देता हूं इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बचा हमारे पास, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन एक्स तो ऑलरेडी है माइनस में, इसके साथ कट हो जाएगा। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, सब कुछ कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो x इज इक्वल टू tan ऑफ 1 बाय a इंटू लॉग ऑफ y। ठीक है, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये आधा क्वेश्चन मैं करूंगा, आधा तुम करोगे। मैं तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ढूंढ के दूंगा बिकॉज ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इतना काम मैं करूंगा। लेकिन आगे सब्सटीट्यूशन, ये वाला जो तुम्हारा शो दैट वाला जो एलएचएस है, इसमें सब्सटीट्यूशन वाला काम तुम्हारा। ठीक है, उतना एल्जेब्रा तुम करो, मैं डिफरेंशिएशन पे फोकस करता हूँ, तुम्हें हेल्प करता हूँ उसके लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स, आई नो कि तुम सब कुछ कर सकते हो बट फिर भी इट्स माई ड्यूटी, मुझे करने दो। डी वाई बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ओ हो, नहीं हो सकता यार, मैं कितना मतलब जल्दी में हूं। ये x की वैल्यू दी गई है और मुझे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है, मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वाओ। कैसे करेंगे? देखो देखो x इज इक्वल टू टैन ऑफ दिस, सो टैन इनवर्स ऑफ x एक्चुअली लिखना पड़ेगा मुझे। टैन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय a इंटू लॉग ऑफ y। a को वो साइड डालेंगे, शिफ्ट करेंगे, a इंटू टैन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। हम्म अब देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, लॉग ऑफ y टू द बेस e लिखता हूं इज इक्वल टू a टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, मतलब e रेज टू a टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ x, e रेज टू a टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। ये है y की वैल्यू। सो ठीक है, y की वैल्यू है e रेज टू a टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज यहां पे एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन है विद चेन रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू a मल्टीप्लाइड बाय टैन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सो ये हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, तो सबसे पहले
तो हमें ये जो भी नंबर है यहाँ पे, जो भी नंबर ई का पावर है, इसको तो एक्स ट्रीट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या मिलेगा, ई रेस टू ए टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स टाइम्स, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स इज ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू ए टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स टाइम्स ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हे अंडर रूट नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा ई रेस टू ए टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया हमें वैल्यू, किसके वैल्यू आई, डी वाई बाई, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं प्रॉपरली लिख लेता हूं ताकि तुमको कोई तकलीफ ना हो। हम्म, देखो एक चीज यहां पे नोट करो, ये जो ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स है, ई रेस टू ए टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज वाई। ठीक है, तो एक चीज यहां पे नोट करो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है चलो ना इसको डायरेक्टली करता हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टाइम्स ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स, डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो इसको लिखो, ए को बाहर लिखना पड़ेगा हमें, राइट, और y को भी बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि y भी तो प्रोडक्ट में है, तो a बाहर आ जाएगा, y भी प्रोडक्ट में है, सिर्फ a और y बाहर रहेगा, और ब्रैकेट में रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू -1। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू -1 इज, पहले तो इसको हम लोग विल ट्रीट इट एज द स्टफ विच इज इनसाइड। ठीक है, और हम लोग ये -1 को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए वाई इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू -2, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर द होल स्क्वेयर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मतलब ये अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2x। ठीक है, अब देखो, so what you have over here, you have dy by dx. See, you already know the value of dy by dx. Just put the value na, just put the value here. वैल्यू क्या है dy by dx की? e raised to a times tan inverse of x times a upon 1 plus x square times a upon 1 plus x square plus ay minus 1। हमें सिर्फ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, राइट? ओके, ठीक है। प्लस ए वाई इंटू ए इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई 2x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी और उसके बाद फिर से यू विल राइट a इंटू वाई। तो एक काम करो ना, a को तुम यहाँ पे मत लिखो, a को तुम अंदर इसके साथ लिखो यहाँ पे, ठीक है? तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? e रेज टू a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है? उसके बाद आएगा, माइनस की साइन तो निकल गई, 2ax मल्टीप्लाइड बाई 2ax अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी जरा ध्यान दो, e रेज टू a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x को कॉमन निकाल लो। कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा देखो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, उसको भी कॉमन निकाल लो। रुको, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, वो भी कॉमन आ गया। न्यूमरेटर में मेरे पास यहाँ पे a है, 2a है, a स्क्वायर है, यहाँ पे है 2ax, x तो नहीं है मेरे पास, तो a है, a को कॉमन निकाल लो, a यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? सो अंदर बचेगा, न्यूमरेटर में सिर्फ एक a बचेगा, माइनस माइनस यहाँ पे a बाहर चला गया, 2x बचेगा, ठीक है? सो दिस इज e रेज टू a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x टाइम्स a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर टाइम्स a माइनस 2x। ये क्या है पता है? दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है? अब क्या होगा? अब तुम अपना जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका तुम अलजेब्रा कर लो। ओरिजिनल इक्वेशन जो तुम्हें प्रूव करना है, मैं जस्ट दिखा देता हूँ तुमको। दिस इज योर फाइनल डबल डिफरेंशिएशन आंसर, थोड़ा लंबा था हाँ, बट यहाँ पे तुम अगर वो वैल्यू डालोगे और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालोगे और x जहाँ जहाँ x है उसमें x की वैल्यू देखो डालने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। अगर पड़ती है तो डालो, नहीं पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि होगा, और इसको सॉल्व करके आई थिंक यू शुड गेट योर आंसर। थोड़ा लंबा है बट हो जाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये लोग ने कैसे किया है मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। ऑल्दो मैंने अपनी तरीके से किया है, उनका मेथड भी इंटरेस्टिंग है, बट एक जगह पे आके थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट वो वैसी कंट्रोवर्सीज हमें शॉर्टकट्स देती है, तो वो भी एक बार देखना जरूरी है। सो वी गॉट y का वैल्यू, वी गॉट dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो हमको मिला है, राइट? फिर क्या किया है पता है? उसने ये जो e रेज टू a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x है उसकी जगह y लिख दिया है, ठीक है? तो a इंटू वाई ए वाई यहाँ पे लिख दिया है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ये साइड शिफ्ट कर दिया है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, और फिर उसने डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया। तो जब उसने डिफ्रेंशिएट किया ना इसको पूरे को, तो उसको जो आंसर मिलता है दैट इज योर प्रूफ, मतलब 2 स्टेप में आंसर उसने निकाल दिया है। सो दैट्स वन टेक्निक, बट आई डेंट वांट टू गिव यू दिस टेक्निक डायरेक्टली, पहले मुझे नॉर्मल तरीके से ट्राई करना था, बट वही तुम्हारा अगर नॉर्मल तरीके से आंसर आता है तो अच्छी बात है, फिर ये मेथड भी सीख लेना। तुम्हें समझा मैंने क्या बोला? प्लीज ये वाला भी एक बार देख लेना, नोट कर लेना चाहिए। ओके, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b
साइन थीटा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, x और y की वैल्यू दी है। शो दैट वाई स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। मुझे लगता है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, बट मुझे लगता है कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, पैरामेट्रिक क्वेश्चन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा के टर्म्स में, मतलब जब तुम डी वाई बाई डी एक्स और y की भी वैल्यू थीटा के टर्म्स में, मतलब जब तुम dy बाई डी एक्स ढूंढोगे तब तुम्हें थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना है यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा का मतलब क्या है पता है? ये जो y है ना उसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना, और dx बाई डी थीटा मतलब ये x की वैल्यू को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना। देन यू गेट dy बाई डी एक्स, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करो, यू गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड देन यू पुट द वैल्यूज विच एवर रिक्वायर्ड वैल्यूज आर देयर इन दिस इक्वेशन टू प्रूव इट। ठीक है, ये तुम करोगे। देर आर मेनी क्वेश्चंस एंड इफ आई फील के कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, जो है काफी सारे दिख रहे हैं मुझे, तो वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस राइट नाउ। ओके, डन। सो लेट्स चेक द आंसर। देखो, सबसे पहले dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा की वैल्यू, फिर dy बाई dx की वैल्यू, राइट, और dy बाई dx की वैल्यू x और y के टर्म्स में भी निकाली है वो लोग ने। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी x और y के टर्म्स में निकाली है, एंड y स्क्वायर, ये जो y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसको वो लोग ने सिंप्लीफाई किया, और फिर इन सब का जो वैल्यूज उसने ओरिजिनल इक्वेशन में डाला है तो उसको जीरो मिलता है। ठीक है, मतलब दिस इज द मेथड विथ विच यू हैव टू डू। साइन थीटा और कॉस थीटा का जर्नी इतना नहीं है, थोड़ा सा ही जर्नी है, बट आगे सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। इफ y is equal to a sin log x plus b cos log x, prove that this is equal to 0। तो इसमें भी एक बात याद रखना कि y का जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, तुम्हें dy बाई डी एक्स ढूंढना बहुत इजी है, बिकॉज यहाँ पे तुम चेन रूल लगा के ढूंढ सकते हो, आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, dy बाई डी एक्स एक बार मिल गया तुमको, फिर क्या करोगे वो मेन। तो वो जो शॉर्टकट मेथड तुम्हें बताया था मैंने, जो मैं फिर से यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यू गेट, सपोज यू गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos log x after differentiation, a into cos of log x times, sorry, minus, okay, sorry, times 1 by x minus b sin log of x टाइम्स 1 बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो पता है, ये 1 बाय एक्स को कॉमन निकाल लो और वो साइड शिफ्ट कर दो, मतलब ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, और x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग x माइनस b इंटू साइन ऑफ लॉग x, a इंटू कॉस ऑफ लॉग x माइनस b इंटू साइन ऑफ लॉग x। ठीक है, a इंटू कॉस ऑफ लॉग x माइनस b इंटू साइन ऑफ लॉग x। अब इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हें जो फाइनल आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करके यू कैन डायरेक्टली गेट दिस वैल्यू। जो पहले मैंने टेक्निक बताई थी उसी टेक्निक पे ये आगे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट एंड मेक श्योर दैट यू गेट द आंसर। चलो, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कैसे वो लोगों ने
यहां तक निकाल दिया, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो एक्स डीवाई बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो लोगों ने प्रोडक्ट रूल से किया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल से इतना आंसर आ गया, यहाँ पे फिर से 1/x आया, उसको शिफ्ट किया, इतना आंसर आ गया। इतने आंसर आने के बाद इसमें सिर्फ क्या करना है, ये जो क्वांटिटी है ये है -y, तो -y को वो साइड शिफ्ट करोगे, +y बन जाएगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE 2016 क्वेश्चन। x into cos of a plus y is equal to cos y. Then prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a, and hence show that d square y by dx square is equal to, sorry, d square y by dx square plus sine of 2 bracket a plus y times dy by dx is equal to 0. हो जाएगा। पहले तो मुझे लगता है कि y की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे dy बाई डी एक्स है ना। y की वैल्यू ढूंढना तो मुश्किल है, क्योंकि cos का आर्ग्यूमेंट है y, cos का आर्ग्यूमेंट है a प्लस वाई, तो y को अलग करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ y द होल अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई, ये x की वैल्यू हो जाएगी। नाउ I recommend you to find dx by dy, means differentiate x with respect to y and get the answer। मतलब इसको differentiate करो with respect to y, क्योंकि हमारा argument y है, हमारा जो डोमेन है वो y है यहाँ। ठीक है, तो dx by dy तो मिल जाएगा, बट तुम्हें तो ढूंढना है dy by dx। सो dy by dx eventually is 1 upon dx by dy, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स भी मिल जाएगा, और फिर तुम्हें डबल डिफ्रेंशिएट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ढूंढना है, और ये जो तुम्हारा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डबल डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू यहाँ पे डाल के ये इक्वेशन को प्रूव कर देना है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट। ओके डन, लेट्स चेक द आंसर। तो देखो, डी एक्स बाई डी वाई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आता है, इसको सिंप्लीफाई किया है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यस। और फिर डी वाई बाई डी एक्स ढूंढा है 1/dx बाई डी वाई से, सो वी गेट आर रिक्वायर्ड थिंग, देन डिफ्रेंशिएट किया है दूसरी बार एंड सिंप्लीफाई करके वी गेट आर आंसर। Okay, so y is equal to log of y is equal to log of x plus under root of 1 plus x square the whole square, और हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स ही ढूंढना पड़ेगा। सो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स सबसे पहले चेन रूल लगाएंगे इसमें। सो 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग ऑफ दिस। नाउ रिमेंबर दैट, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ओके, अब बचा ये चीज, ये तो एज इट इज हमको लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां पे हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये जो लॉग के साथ चीज है, इसको हम लोग एक्स मानेंगे, और ये नेचुरल लॉग है, मतलब इसका बेस ई है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई इज नथिंग बट वन बाय एक्स। ठीक है, तो यहां पे पहले आएगा वन बाय एक्स, दैट इज वन बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब वो जो अंदर वाला स्टफ है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ब्रैकेट डाल देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, थोड़ा लंबा जाएगा ये, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, अब इसमें भी तुम ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है, इसको रेस टू वन बाई टू लिख सकते हो, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू वन बाई टू। वन बाई टू को आगे मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई टू टाइम्स, और अंदर जो है ना उसको हम लोग एक्स ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पावर है उसमें से वन माइनस हो जाएगा, तो भी माइनस वन बाई टू, मतलब ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज दिस इज, यू कैन से दिस इज चेन रूल। सो हमने सिर्फ पहले इसको अंदर वाले को, सॉरी रूट वाले को डिफरेंशिएट किया, अब हम अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय अंदर मुझे लगता है और एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ वन इज जीरो एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स, तो जीरो प्लस टू एक्स इज टू एक्स। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, थोड़ा लंबा लग रहा है बट है ही ऐसा, अभी कुछ नहीं कर सकते। सो टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर द होल अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर टाइम्स, ब्रैकेट डाल देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज वन, प्लस ब्रैकेट डाल देता हूँ, यहाँ पे ये जो टू एक्स है ये सब मल्टीप्लीकेशन में, तो ये टू एक्स ये टू के साथ कट जाएगा, वन प्लस ब्रैकेट हटा देता हूँ, एक्चुअली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है, वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स log of x plus under root of 1 plus x square the whole upon x plus under root of 1 plus x square times, ये हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ तक तो सही आ गया। अब इसके बाद एक स्टेप है, मुझे लगता है कि should we take LCM and then take out common? Yes, most probably. ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। देखो, यहाँ पे जो LCM जब हम लेंगे इसका, तो इन दोनों का प्रोडक्ट LCM होगा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या बनेगा, टू टाइम्स
log of x plus under root of 1 plus x square, 2 times log of x plus under root of 1 plus x square times under root of 1 plus x square. ठीक है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ। हे मैं एलसीएम क्यों ले रहे हो तुम मल्टीप्लिकेशन में यार? वो वेट 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 वेट, क्या कर रहा हूं मैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे तो ये मल्टीप्लिकेशन में। ओह, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई, देखो ये हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बचेगा सर। ओके, चलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, एंड देन विल हैव x plus under root of 1 plus x square. We have x plus under root of 1 plus x square separately. ये log के साथ है, ये विदाउट log है, सेपरेट है। लेकिन नीचे क्या आएगा? नीचे डिनोमिनेटर में ये जो x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके साथ ही अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो ये देगा हमें अंडर सॉरी x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, एक मिनट मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया यार? क्योंकि ये ऊपर तो इसके साथ कट रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। एक मिनट, ये तो सीधा सीधा इसके साथ कट रहा है मल्टीप्लीकेशन में। व्हाई डिड आई मल्टीप्लाई? ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई डिड नॉट सी, आई एम थिंकिंग के बीच में प्लस की साइन। इट्स ओके, नो बिग डील। So dy by dx is equal to 2 times log of x plus under root of 1 plus x square upon under root of 1 plus x square। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल dy by dx। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे प्रूफ में तुमको क्या चाहिए? तुम्हें तो डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो तुम्हें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो तुम्हारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो है हमारे पास। एक मिनट, वो क्या था? वो फुल स्क्वायर में था, हमारे पास स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स को 2 रूट वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? तो अगर मैं इसको स्क्वायर किया, dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर किया इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 4y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे सर आपने स्क्वायर क्यों किया? मैं स्क्वायर इसलिए किया बिकॉज अब देखो कितना सिंप्लीफाई होगा ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। And now if you differentiate, ये वो टेक्निक है, now if you differentiate with respect to x, तो ये जो पूरा है ना प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, dy by dx the whole square, सब कुछ डिफरेंशिएट होगा, and then when you simplify you get your required answer। So please do this one। आगे ये मैंने तुम्हें एक टेक्निक बताई है,
जिससे इजीली आंसर आएगा। नहीं तो क्या होगा पता है, ये इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे विदाउट ये, सॉरी विदाउट वाई, मतलब ये लॉग के साथ, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई एंड देन जो मैंने जिस तरीके से बताया, अब डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं हो तुम्हारा, डायरेक्टली ये जो फॉर्म है ना ये प्रूव हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो। यहाँ तक अपने को आया था, फिर मैंने ये किया जो मैंने तुम्हें बताया, एंड देन अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, you get the answer. Please check your answer. एंड में डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। इफ y is equal to log of 1 plus 2t square plus t raised to 4 and x is equal to tan inverse of t। ओ x t के टर्म्स में है और y भी t के टर्म्स में, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बहुत इजी है यार, मैंने पहले भी बताया था, ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन। सो डी वाई बाई डी एक्स पहले ढूंढना पड़ेगा, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। पहले y और x को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो और तुम्हें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। वंस यू गेट dy बाई डी एक्स, फिर तुम क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे एंड यू विल फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इट्स इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट। सारे सिमिलर क्वेश्चंस मैं तुमसे करवा रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट फील के सर कुछ कर नहीं रहे। मैं अगर ये करने बैठूंगा तो मुझे काफ़ी लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, बट अगर ये इजी है और मैंने टेक्निक बताई है तो तुम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके लेट्स चेक द आंसर। तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, टी के टर्म्स में आएगा। बहुत इजी, डबल डिफ्रेंसिएशन भी बहुत इजी है, सिर्फ एंड में टी की वैल्यू को 4 डी टी बाई डी एक्स आया, और 4 डी टी बाई डी एक्स, 4 डी टी बाई डी एक्स आया। इसमें तुमने डी एक्स बाई डी टी था ना, उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू x, प्रूव दैट। देखो y इज इक्वल टू x रेज टू x, ये तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आएगा, तो log ऑफ y क्या हो जाएगा, log ऑफ x रेज टू x। सो log ऑफ y हो जाएगा x log of x। Now if you differentiate with respect to x, d by dx of log y is equal to d by dx of x log x। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x, that is 1 by x into x plus d by dx of x into log x। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, y ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। ये आ गई वैल्यू dy बाई डी एक्स की। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इफ यू ट्राई you get d square y by dx square and then put the values in the equation, you get the answer. Logarithmic differentiation, if you remember, function raised to function. Please solve it, pause the video and solve it. Okay, so I hope that you've got the answer. Let's check it. So सबसे पहले dy by dx, that is y bracket 1 plus log x, then d square y plus d square y by dx square,
and simplification. If y is equal to cosec inverse of x, then show that x bracket x square minus 1 times d square y by dx square plus 2x square माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. इसमें भी टेक्निक का तो यूज करना ही पड़ेगा. देखो y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x है, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला से कितना बनता है, माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, जहां पे x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन. ठीक है. अच्छा, अब क्या करेंगे पता है, मैं टेक्निक दिखा रहा हूं तुम्हें. देखो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इस फॉर्म में तो डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे. तो टेक्निक में पहले आएगा स्क्वेयरिंग बोथ द साइड. सो डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब तुम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करोगे ना, तो माइनस साइन हट जाएगी. यू गेट वन अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब क्या करो पता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन को ये साइड ले लो, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और इज इक्वल टू वन कर दो. ठीक है. अब if you want you can multiply this, so it becomes x raised to 4 minus x square multiplied by dy by dx the whole square is equal to 1, and then again differentiate with respect to x. अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना विथ रिस्पेक्ट टू x, इन 3 स्टेप्स यू शुड गेट दिस इक्वेशन. ये ना टेक्निक हमेशा हम लोग यूज कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन वी आर यूजिंग दिस टेक्निक, सो बी केयरफुल अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नहीं हुआ तो पॉज करके कर लो. दो क्वेश्चन बचे, लेट्स फिनिश इट क्विकली. सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुम्हें हिंट दे के आगे तुमसे करवा रहा हूं, ताकि तुम्हारा यहां भी प्रैक्टिस हो प्लस एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस होगा. ठीक है. देखो यहां से हमने डबल डिफरेंशिएशन शुरू किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया डिवाइडिंग बाय 2x dy बाई dx से. एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई किया, and then we got it in the third step. Okay, चलो next 13th question. Y is equal to e raised to tan x है. We have to prove that cos square x d square y by dx square minus 1 bracket minus bracket 1 plus 2 sin 2x into dy by dx is equal to 0. सबसे पहले dy by dx ढूंढो, उसको सिंपल टर्म्स में लाओ. ठीक है, सिंपल टर्म्स में लाओ, और फिर डिफरेंशिएट करना है डबल डिफरेंशिएशन. मैं बताता हूं कैसे. सो dy by dx is d by dx of e raised to tan x. ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे तुम, e raised to tan x टाइम्स d by dx of tan x. d by dx of tan x क्या होता है, sec square x. ठीक है, ये क्या है, dy by dx. ठीक है, तो sec square x का रेसिप्रोकल है. अच्छा, sec square x को यहाँ पे लेके जाओ, वन अपॉन sec square x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई रेज टू tan x, दैट इज नथिंग बट y. इसको y से रिप्लेस करो, जितना सिंपल हो सके कर दो. cos square x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y हो जाएगा ये. एंड नाउ इट इज टाइम फॉर डबल डिफरेंशिएशन. ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करोगे, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, सिंप्लीफाई होते 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 you get your equation which you had to prove. In 3 more steps you get your equation. Please pause it and do it. Okay, done. Sure, let's check the answer. तो यहां तक तो आया था, डबल डिफरेंशिएशन में ये मिलता है हमें. ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने. cos square x into d by dx of dy by dx is d square y by dx square.
into dy by dx into dy dx of cos square x, that is 2 cos x into minus sin x dy by dx, और dy by dx of y हो गया dy by dx। फिर ये dy by dx को यहाँ पे डिवाइड कर दो, अगर पॉसिबल है तो। नहीं पॉसिबल है तो dy by dx को वो साइड ले लो और फिर कॉमन लेके तुम्हें करना पड़ेगा, ये साइड ही लिया है वो लोगों ने, फिर कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया है और फिर मिल गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, मैंने काफ़ी सारे सम्स हाफ किए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है, अदरवाइज ये पार्ट और लंबा चलता है और मुझे एओडी कैसे भी ख़त्म करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी पूरी एओडी ख़त्म करने की। फिजिक्स में तो हम कहीं भी नहीं है, एंड आई फील रियली मतलब शेमफुल, इट इज़ अ शेमफुल थिंग फॉर मी, बट आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। आई थिंक मेरा काफ़ी होप्स था कि हम अच्छा करेंगे, बट देन यू नो द वे थिंग्स टर्न आउट दिस ईयर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट एटलीस्ट मैथ्स हमारे हाथ में है, मैं अभी भी मानता हूँ, और हम कर सकते हैं। तो फिजिक्स तो धीरे धीरे चलता रहेगा आगे, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा, ऑल्दो आई एम नॉट much of a help to all of you guys, but till now, but I'm sure that ये साल का जब बोर्ड्स अप्रोच होगा, बोर्ड्स आएगा, तब तक तो मुझे लगता है कि हम लोग कर लेंगे, खींच लेंगे, थोड़ा लेट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक रिवीजन के तौर से भी तुम्हें मैं पूरा करवा दूंगा। मतलब तुम मेरे वीडियोस देखना बंद मत करना यार, ठीक है, अगर तुम वो देखते रहोगे ना तो मुझे समझ में आएगा कि मतलब तुम्हारा हो सकता है आगे, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि मेरा पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा ये साल सस्टेन करने का। एनीवेज, सो वी हैव y इज इक्वल टू e रेस टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकलेगा, dy बाई डी एक्स ढूंढो, देखो इजी है, मैं तुम्हें करके नहीं दिखा रहा हूँ। फिर वही चीज है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी उसको सिंप्लीफाई करो, जो हम करते हैं जनरली, जैसा ये स्टेप हमने किया था पहले, ये वाला स्टेप, बस यही करना है तुम्हें। जो e रेस टू tan x है उसको y से रिप्लेस किया, सेक्स स्क्वायर x को वो साइड लेके गए, वही चीज यहाँ भी करोगे तुम, तो तुम्हें समथिंग इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग ईजी इन टर्म्स ऑफ y आएगा। फिर उसको चाहिए तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर दो एंड देन डिफरेंशिएट, बिकॉज तुम्हें जो प्रूव करना है उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर द होल स्क्वेयर है, सॉरी, वो तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड नहीं करोगे, मतलब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है, सो प्लीज डू दैट एंड सॉल्व दिस वन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ। ठीक है, डन, लेट्स चेक द आंसर। तो यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें बोला था e रेस टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, y ले लो उसको, 2 को इधर ही रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वो साइड ले जाओ। फिर वो लोग ने स्क्वेयरिंग किया है, मैंने तुम्हें बोला ना स्क्वेयरिंग क्यों करना है, क्योंकि तुम्हें जो प्रूव करना है ना उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वेयर है, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तुम्हारा चेन रूल भी लगेगा और मुझे लगता है कि प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, और सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट योर आंसर व्हाट यू रिक्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट खत्म है मेरे हिसाब से, डबल डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इजी है, पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे सिमिलर है, ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ आई थिंक यू कैन मास्टर इट। अब इसके बाद है रोल्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, जो जो इतना बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा पार्ट है, क्वाइट स्मॉल पार्ट, और इजी भी लग रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा जल्दी, इसके बाद फिर अपना एओडी फटाफट फटाफट हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। मुझे पता है किसी की एग्जाम है 2 दिन में, 3 दिन में, आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है, सी यू लेटर, बाय बाय।